series. AP series of common difference. First term is minus 100 and D. Common difference is minus 95 plus 100. That means common difference is 5. And you want to find sum of the series. Sum का formula क्या होता है? That is equal to n by 2 A plus L. First term plus last term. So number of terms कितने हैं? Last term is 120. A first term is minus 100 plus n minus 1 into 5. That means 220 divided by 5 plus 1, that will be equal to n. So n will be equal to 45. So number of terms will be 45. So sum will be 45 by 2 A plus L minus 100 plus 120. That means it will be 450. So your answer will be D part. What will be the sum of this series? That will be 450. तो एक तुम्हारे पास APGP सीरीज से क्वेश्चन 100% ज़ैट में बनने के चांसेस रहते हैं. बहुत हाई चांसेस होते हैं कि APGP का एक बेसिक क्वेश्चन तुम्हारे ज़ैट में आएगा, क्योंकि लास्ट ईयर से काफी बार रिपीट हुए इसी टाइप के क्वेश्चन, और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है. कभी कभी इसमें यही है कि तुम्हारे पास वो नंबर ऑफ टर्म सही से निकालो. कुछ लोग बहुत फास्ट करने के चक्कर में इसमें डी की वैल्यू -5 ले लेते हैं. लास्ट ईयर क्योंकि स्टूडेंट्स थे, उनमें 3-4 स्टूडेंट ने ऐसा किया था, इसलिए मैं एक बार पॉइंट आउट कर दे रहा हूँ कि बहुत फास्ट जाने का नहीं, अपनी एक्यूरेसी पे वर्क करो. एक तुम्हें टारगेट, तुम्हें वो एक बार सर्च कर लेना कितना कितना कट ऑफ गया है, तुम्हें टारगेट मिल जाएगा. क्या इतने टारगेट तक तुम्हें एटलीस्ट पहुंचना ही है अगर पेपर का लेवल सेम रहता है. और it will depend on level of difficulty, but still एक आइडिया तुम्हें लग जाएगा कि अगर इस डिफिकल्टी का पेपर आ रहा है तो मुझे कितना कितना टारगेट एटलीस्ट रखना है बस. उसके बाद अपना टारगेट इंक्रीज और डिक्रीज वो पेपर की डिफिकल्टी के अकॉर्डिंग तुम कर सकते हो पेपर में जाके. प्री डिफाइंड स्ट्रेटजी मत बनाना. तो फर्स्ट विल बी 450. सो दिस इज बेसिक क्वेश्चन ऑफ AMGM कॉन्सेप्ट, APGP कॉन्सेप्ट ना, APGP. तो एक क्वेश्चन इस सेक्शन पे बनने के चांसेस रहते हैं. 47 क्वेश्चन. 4 two-way pipes A, B, C, D can either fill an empty tank or drain the full tank in 4, 10, 12 and 20 minutes respectively. That means one is outlet pipe and one is inlet pipe. मतलब A outlet भी हो सकता है and inlet भी हो सकता है. Same for B, same for C, same for D. ठीक है. Can fill an empty tank or drain the full tank. तो कैपेसिटी कुछ लेट कर लो, और हम लोग ऑलवेज क्या ट्राई करते हैं कि एलसीएम लेना टोटल पाइप की कैपेसिटी. तो व्हाट विल बी द टोटल कैपेसिटी? लेट टोटल कैपेसिटी इज 60. So what will be efficiency of A? Efficiency of A will be plus minus 15. It could be plus 15, it could be constructive work or destructive work. It could be plus 15 or minus 15. And efficiency of B will be 6 plus minus 6. Efficiency of C will be plus minus 5 and efficiency of D will be plus minus 3. This is efficiency. The efficiency of A will be plus minus 15, efficiency of B plus minus 6, C plus minus 5, D plus minus 3. All 4 pipes are open simultaneously when the tank is empty. Under which of the following condition tank would be half filled after 30 minutes? 30 minutes में half filled. Total capacity is 60, half filled that means 30. In 30 minutes 30 unit fill हो जाए. That means in 1 minute, 1 unit. That means हमें वो ऑप्शन चूज करना है in which A, B, C, D are filling 1 unit in 1 minute. हम लोगों को वो ऑप्शन इसमें से पिक करना है out of given options. तो फर्स्ट ऑप्शन is pipe A filled. That means pipe A filled. That means we are taking plus 15. Pipes B, C, D are drained. That means it was outlet pipe. So it will be -6, -5, -3. That means plus 15 minus 14. It will be plus 1. And we need this one. Plus 1. 1 minute में हम लोगों को कितने की रिक्वायरमेंट है? We need 1 unit in 1 minute. That means our answer will be A part. No need to check for B, C, D here because A is satisfying your conditions ना. Pipe A filled and pipes B, C, D drained. फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि टोटल कैपेसिटी लेट 60 and from A it capacity will be plus minus 15. B is filling the pipe tank in 10 minutes. That means capacity will be plus minus 6. Capacity of C will be plus minus 5. Capacity of D will be plus minus 3. And condition under which of the following condition the tank would be half filled after 30 minutes. Half filled that means 30 unit will be filled in 30 minutes. That means per unit in per minute ना, per unit minute. तो 1 minute in 1 unit. ठीक, 1 minute में 1 unit fill करनी है. That means we are looking for the option in which pipe can fill 1 unit in 1 minute. So option A, pipe A filled and pipe B, C, D drained. Pipe A filled that will be plus 15. Pipe B, C drained. That means it will be -6, -5, -3. That means it will be plus 1. So option A is satisfying your condition. That will be your answer. Any doubt to anyone in question 46 and 47? Any doubt? Question 47 is again important. There will be a question from time and work section.
टाइम एंड वर्क सेक्शन से एक क्वेश्चन जरूर होगा, एंड दैट विल नॉट बी अ डायरेक्ट क्वेश्चन, चांसेस यही रहते हैं कि डायरेक्ट ना हो, दैट विल बी एन ऑप्शंस अप्रोच क्वेश्चन, मतलब वहां पे कुछ ऑप्शंस दिए होंगे, तुम्हें उनका यूज करना होगा, इसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। चेक कर सकते हो मल्टीपल होगा। हाँ, अब एक चीज और सुन लो, चलो ठीक है, जो ज़ैट का क्वेश्चन होता है ना बेटा, अगर तुमने कैट तुमने किया हुआ है तो कैट में क्या, देयर इज एन ऑप्शन कॉल्ड सीबीडी ना, कैन नॉट बी डिटरमाइन। कैन नॉट बी डिटरमाइन होता है, तो अगर हम लोगों के एक से दो ऑप्शन सेटिस्फाई करें तो हम लोग आंसर क्या देते हैं, दैट आंसर विल बी कैन नॉट बी डिटरमाइन। बट ज़ैट में जो लास्ट 2016 की मैं बात बता रहा हूं, देयर वाज अ क्वेश्चन इन विच टू ऑप्शंस वर सेटिस्फाइंग एंड लास्ट ऑप्शन वाज गिवन एज नन ऑफ दीज, लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दीज गिवन था, ठीक है, तो उसका आंसर नन ऑफ दीज दिया हुआ था हम लोगों ने, ठीक है। अगर दो ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे, क्योंकि हम लोगों का दिमाग में अगर नन ऑफ दीज दिया हुआ है और तुम्हें एक ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम लोग फर्स्ट, जैसे पहला ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया, हम लोग डायरेक्टली ए ऑप्शन आंसर लगा देंगे कि आंसर विल बी ए। बट वहां पे क्योंकि नन ऑफ द अबव दिया है, अगर दो या दो से ऑप्शन सेटिस्फाई करते हैं तो हम लोगों को आगे चेक करना होगा इन ज़ैट। कैट में ये नीड नहीं होती है, बिकॉज अगर कैट में मोर देन 2 होते हैं तो दे विल गिव सीबीडी एज एन ऑप्शन, बट ज़ैट में क्योंकि उन्होंने पहले निकाला हुआ है, ये उनका वो जो क्लियर एक्सप्लेनेशन था उसमें मेंशन गिवन था कि ई कुड बी एन ऑप्शन, अगर दो ऑप्शन सेटिस्फाई करे, तो इस क्वेश्चन में भी तुम्हें बाकी ऑप्शन चेक करने चाहिए, बिकॉज देयर इज एन ई ऑप्शन, नन ऑफ द अबव गिवन है, तो हो सकता है कि दो चीजें यहाँ पे सेटिस्फाई कर जाए, तो तुम्हें चेक करनी चाहिए, बट नहीं सेटिस्फाई नहीं करेंगी, यहाँ पर एक ही ऑप्शन था, ए आंसर आ रहा था, तो सेटिस्फाई नहीं करेंगी तो अभी तो ना चेक करो, लेकिन तुम्हें चेक करना चाहिए इन एग्जाम कंडीशंस। अगर नन ऑफ द अबव दिया है तो हो सकता है चांसेस इस टाइप में कि दो ऑप्शंस तुम्हारे सेटिस्फाई करते हैं, तो ये दिमाग में रखना कि नन ऑफ द अबव के केस में तुम्हें ऑप्शंस चेक करने हैं सारे। The third question is again an easy one. A shop which sold same mark price shirt announced an offer. If 1 buy 3 shirt, then fourth shirt is sold at a discount price of 100 rupees. Patel took the offer. He left the shop with 15 shirts after paying 20,000. 20 shirts, that means 15 शर्ट के लिए वो कंप्लीट पे करेगा एंड 5 शर्ट्स विल बी ऑफर्ड शर्ट ना, 15 शर्ट्स के लिए वो कंप्लीट पे कर रहा होगा, और जो 5 शर्ट्स होंगी, क्योंकि हर 3 शर्ट ले रहा है तो फोर्थ शर्ट कैसी है, डिस्काउंटेड मिल रही है ना, तो 15 शर्ट के साथ 5 शर्ट्स कैसी होंगी, डिस्काउंटेड होगी तुम्हारे पास। दैट मीन्स लेट करो कि उनका मार्क्ड प्राइस शर्ट का x रुपीज है, तो 15x प्लस 500 दैट विल बी इक्वल टू 20,000, so 15x will be equal to 19,500, so x will be equal to 1,300, so marked price will be 1,300, so answer will be 1,300। again an basic question of this MP and CB concept ना, basic question है काफी थर्ड, तो अगेन तुम थर्ड क्वेश्चन कर सकते थे इजिली ना कि 1,300 will be your answer। आई होप थर्ड क्वेश्चन क्लियर होगा। Now fourth one. The fourth question is AB is a chord of circle. The length of AB is 24 centimeter. AB is a chord of circle. AB is a chord of a circle whose length is 24 centimeter. P is the midpoint of AB. P is midpoint of AB. From P on either side of the chord meet the circle at M and N respectively. Perpendiculars from P on either side of the chord meet the circle at M and M respectively. That means this is the scenario. This is let M and this is N. And P, this is M, this is N. PM is less than PM. Now, PM is given as 8, this PM, and AB is given as 24 and P is midpoint. That means this AP is 12 and this BP is also 12. And we want to find length of PM. This is X. अब तुम लोगों ने एक सेकेंड फॉर्मूला पढ़ा होगा that in any circle, if there is a point P, then this PT and this is A and B. This PT square is equal to PA into PB. This is second formula, that PT square is equal to PA into PB. If we draw another second, that's PCD. That means PT square
will be equal to PC into PD. That means PA into PB will be equal to PC into PD. ठीक है, ये आउटर सर्कल के लिए जब पॉइंट का होता है बाहर होता है सर्कल. Same will be applied when point is inside the circle. That means PA into PB will be equal to PM into PM. PA into PB will be equal to PM into PM. This is basic property of circle. Now PA is given as 12, PB is given as 12, PM is given as 8 into PN. That means length of PN will be equal to 8. That will be your answer. Answer will be B part B. Any doubt to anyone in this? 49th question, any doubt? अभी तक देख ही लो कि जितने क्वेश्चंस बने उनमें कुछ एक्स्ट्रा नीड नहीं थी, जो तुम लोगों ने ऑलरेडी कैट के लिए पढ़ा हुआ है उसी कॉन्सेप्ट पे तुम्हारे क्वेश्चंस हैं सारे, है ना, उसी कॉन्सेप्ट पे आ रहे. अननेसेसरी बहुत ज्यादा डिटेल्ड में किसी कॉन्सेप्ट पे जाना और बाकी चीजों में टाइम ना इन्वेस्ट करना, दैट विल बी यूजलेस. जो तुम्हारा नो, इट विल बी पॉसिबल इन ऑल केसेस. फैजल, कोई भी केस हो, परपेंडिकुलर हो या ना हो, डजंट मेक एनी डिफरेंस. इट विल इज पॉसिबल फॉर ऑल केसेस, एप्लीकेबल फॉर ऑल केसेस. A shop will sold same marked price shirt, announced an offer. If one buys 3 shirt, then 4 shirt is sold at discount price of 100 rupees. मतलब 3 शर्ट है तो 1 शर्ट फ्री मिल रही है ना 100 रुपीज में. ठीक है, यस. अगर तुम्हारी 6 शर्ट्स होंगी तो 2 मिलेंगी ना फ्री, 2 मतलब 100 रुपीज में मिलेंगी. 9 होंगी तो 3 मिलेंगी ना, 12 होंगी तो 4 मिलेंगी, अगर 15 होंगी तो 5 शर्ट्स मिलेंगी ना. दैट मीन्स 20 शर्ट्स वो कह रहा है खरीदी है. दैट मीन्स 15 शर्ट्स will be on marked price and 5 shirts will be on discounted price. That means let marked price is x, so 15 into x plus 5 into 100, that will be equal to 20. And you can find x, that will be equal to 30. Then that will be your answer. I hope clear होगा. ठीक है. Then 50th question. If x and y are real numbers, the least possible value of the expression 4x minus 2 whole square plus 4y minus 3 whole square minus 2x minus 3 whole square. Now this is an important question for Z, क्योंकि at least 3 से 4 बार इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट हुआ है. 3 से 4 बार एटलीस्ट इस टाइप का क्वेश्चन, अगर तुम पास्ट ईयर क्वेश्चंस लगाओगे, यू विल गेट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वेयर यू वांट टू फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन. तुम्हें किसी एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी. देयर आर मेनी मेथड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. फर्स्ट मेथड इज बाय पार्शियल फ्रैक्शन, सेकंड मेथड बाय स्क्वायरिंग द टर्म्स. तो मैं स्क्वायर बना के पार्शियल मेथड से, दोनों मेथड से सॉल्व कर देता हूं. ठीक है. अब अगर तुम कोई चीज पॉजिटिव देख रहे हो, जैसे दिस इज टर्म इन एक्स एंड दिस इज ऑल्सो इन एक्स, ठीक है ना. अब इस कंडीशन को हम लोग एक्स पे कन्वर्ट कर सकते हैं. दिस विल बी 4x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x minus 2, x square plus 9 minus 6x plus 4 y minus 3 whole square. Now this is independent term. एक सेकेंड वेट करो. Now fine. Again. Now 4x minus 2 whole square minus 2 x minus 3 whole square plus 4 y minus 3 whole square. Okay. Now we want to find minimum value of this expression. Now what will be the minimum value of this y term? The minimum value of any square will be 0. That means minimum value of this will be 0. At y is equal to 3. At y is equal to 3, this value will become 0. Now we have to solve this equation only. That means this will be 4x square plus 4 minus 4x minus 2 x square plus 9 minus 6x. That means it will be 2x square minus 4 minus 2x. That will be, इसकी minimum value मुझे find करनी. We want to find minimum value of this. That is equal to 2x square, that is 4x square, 2x square, 16 minus 18 minus 4 minus 16x plus 12x plus minus 4x.
and this will be minus 2. So 2x square minus 2x minus 1. Now this 2x minus 1 whole square minus 2. That means the minimum value of this, and you know that the square term, minimum value of square term will be 0. Any squares minimum value will be 0 always, no? So this will be 2 into 0 minus 2, that will be minus 2. तो कोई भी मिनिमम अगर वैल्यू का क्वेश्चन आता है वेयर यू वांट टू फाइंड लीस्ट वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन, योर मोटो इज टू कन्वर्ट दैट नंबर, दैट एक्सप्रेशन इन होल स्क्वायर टर्म्स. एक्स के टर्म में एक होल स्क्वायर बना सकते हैं एंड इन टर्म्स ऑफ वाई होल स्क्वायर, एंड देन यू कैन फाइंड मिनिमम वैल्यू, बिकॉज यू नो दैट द मिनिमम वैल्यू ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर फॉर एनी रियल वैल्यूज इज 0. कोई भी अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर टर्म कहूं कि a minus 4 होल स्क्वायर, व्हाट विल बी मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, दैट विल बी 0 एट a इज इक्वल टू 4. सो ये एक कॉन्सेप्ट होता है हमारा जहां पे हम लोग ट्राई करते हैं कि टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर. और दूसरा मेथड क्या था कि अगर तुम परफेक्ट स्क्वायर उतना इजीली नहीं बना पाते हो, तो दिस इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. 2x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4x इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस विल बी माइनस d by 4a at x is equal to minus b by 2a. At x is equal to minus b by 2a, this value will be, minimum value will be minus d by 4a. X is equal to minus b by 2a. Now minus b is equal to 4. So that will be 4 divided by 2 into 2. That means that x is equal to 1. You will get your minimum value. That means 2 minus 2 minus 4. That means minimum value will be minus. You can also solve by this method. The minimum value क्या quadratic expression होता है, इसकी minimum value किस पे अकर करती है, when a is greater than 0, that minimum value will be at x is equal to minus b by 2. And you can directly apply here that minimum value will be minus d by 4. By both method you can solve this question. Now another method you can solve this question by partial fraction or partial differentiation also, that fxy is equal to 4x minus 2 whole square plus 4, ये उनके लिए जिनको पार्शियल फ्रैक्शन थोड़ा पता है, ठीक है ना, होल स्क्वायर माइनस 2 x minus 3 whole square, and you want to find minimum value of this expression. First differentiate it with respect to x. With respect to x, that means y will be constant here. That means it will be 8x minus 2 minus 4x minus 3. That means it will be 8x minus 16 minus 4x plus 12. That will be equal to 0. For minimum value, del f x by del x should be equal to 0. That means 4x minus 4 should be equal to 0. That means x is equal to 1 will give you minimum value. You can directly find that x is equal to 1 will give you minimum value. Now put x is equal to 1 and you can find your answer. Now in same case, del f x by del f x y by del y. That means x will be work as constant. It will be 12, 8 y minus 3. 8y minus 3 is equal to 0. That means y should be equal to 3. That means at x is equal to 1 and y is equal to 3, you will get your minimum value. So this is another method to tackle this type of question where you can partial fraction कर सकते हो, and you can find your minimum value. So answer will be b is equal to minus 4. ठीक है. So there are multiple methods to solve this type of question, but really important type of question for Z. Z के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तुम्हें पहला मेथड जो बेसिक अप्रोच है, अगर किसी ने नहीं पढ़ा हुआ पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो दे कैन अप्लाई दिस मेथड, दैट परफेक्ट स्क्वायर के टर्म में कन्वर्ट करो एंड यू कैन फॉर्म योर. यस, एक्स के लिए अमृत, यस एक्स के लिए यू कैन अप्लाई पार्शियल एंड वाई के लिए डायरेक्टली. Yes, minus 4. It will be minus 4. It will be. It will be minus 4. At x is equal to 1 and y is equal to 3. When you will put x is equal to 1, it will be 4 plus y is equal to 3, 0 minus 2 into 4. That will be 4 minus 8. That will be equal to minus 4. That will be minus 4. Okay? So there are multiple methods to solve this question. Now next question. Now 50 verse 1. If fx is equal to, again an important type of question. ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी तुम्हारे Z में रिपीटेड होते हैं, जो फंक्शन से रिलेटेड होते हैं ना, जहां पर तुम्हें fx की जो, और Z तुम्हारे IFT में भी आए थे, तुम्हारे 2 क्वेश्चन IFT सेक्शन में भी थे इस टाइप के. तो इस टाइप के क्वेश्चन हर एक एप्टीट्यूड एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं तुम्हारे पास. जैसे fx is equal to ax plus b दिया है. Let fx is equal to ax plus b, where a and b are positive real numbers. It's important to check that these are positive real number. पूरी स्टोरी चेंज हो जाती है बेटा. तो कभी भी अगर Z का क्वेश्चन रीड करो,
बहुत केयरफुली रीड करो, एक एक पॉइंट पे गलत होने के चांसेस होते हैं, इस तरह से क्वेश्चन का फॉर्मेशन होता है उनका। अगर इजी क्वेश्चन भी होगा, स्टिल हाई चांसेस दैट यू विल गेट अ रॉन्ग आंसर। अगर तुमने एक भी सिली मिस्टेक करी, तुम्हें कोई ना कोई आंसर मिल जाएगा। जैसे लास्ट क्वेश्चन 50th क्वेश्चन भी तुम्हें इजी लग रहा होगा, लेकिन अगर तुम उसमें जरा सी भी मिस्टेक करोगे, अगर तुम उसमें गेस वर्क भी करोगे ना, यू विल गेट एन ऑप्शन देयर। तुम्हारे पास एक ऑप्शन तुम्हारी गलती के लिए भी वहां रखा हुआ होगा। ये 100% जेड के क्वेश्चंस में होता है। तुम चेक करना कोई भी पेपर, अगर तुम मिस्टेक भी करोगे फिर भी तुम्हें एक ऑप्शन तुम्हारी मिस्टेक के लिए होगा वहां पे रखा हुआ। तो ये मत सोचना कि वहां पे कुछ भी होगा, है ना। तो अपना एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, प्रॉपर क्वेश्चन को रीड करो। अगर पॉजिटिव दिया है तो पॉजिटिव रीड करो, निगेटिव दिया है तो सही से निगेटिव रीड करो, रियल केवल गिवन है तो रियल रीड करो। एक भी पॉइंट मिस करोगे यू विल गेट अ रॉन्ग आंसर। ठीक है। सो fx इज इक्वल टू ax प्लस b, a एंड b आर पॉजिटिव रियल नंबर। इफ f of fx दैट मीन्स a of x को किससे रिप्लेस करेंगे, वी विल रिप्लेस x by fx। a fx प्लस b, fx की वैल्यू कितनी गिवन है, दैट इज ax प्लस b, दैट मीन्स इट विल बी a स्क्वायर x प्लस ab प्लस b। दिस इज योर fx। नाउ fx इज गिवन एज 9x प्लस 8, दैट मीन्स a स्क्वायर x प्लस ab प्लस b, दैट इज गिवन एज 9x प्लस 8। दैट मीन्स वैल्यू ऑफ a स्क्वायर इज इक्वल टू 9, value of b a plus 1 is given as 8. If you will compare here that x का coefficient कितना है, that is 9, x coefficient a square, so a square will be 9 and b common ले लो, b a plus 1 that will be equal to 8. Now a square is equal to 9, so possibilities for a is equal to plus minus 3, but a and b are given as positive real number. That means we will pick a is equal to 3 only. Now a is equal to 3, b into 4 is equal to 8, so b is equal to 2. Now what will be value of a plus b? A plus b will be equal to 5. That means answer will be C. और हो सकता था वो पॉजिटिव रियल नंबर ना देता, वो रियल नंबर दे देता, then answer will be none of these. There are two possibilities that a is equal to -3. When a is equal to -3, b minus 2 is equal to 8. So b is equal to -4. Then a plus b will become -7. Then answer will be E part. उस केस में आंसर कितना होता, that will be E. तो ये छोटी छोटी मिस्टेक ना हो कि पेपर दे के और तुम कह रहे हो वहां पे कि सर मैंने पॉजिटिव नहीं देखा। ट्रस्ट करो, एक क्वेश्चन तुम करोगे और तुम्हारे और जो कट ऑफ गया होगा उसके बीच में डिफरेंस 0.25, 0.5, 0.75 ऐसा डिफरेंस होता है। तो सिली मिस्टेक्स का स्कोप है ही नहीं तुम्हारे जेड के पेपर में। क्या तो तुम मतलब बहुत ज्यादा उससे आगे निकल गए हो कट ऑफ से, तब बात अलग है, एक आध सिली मिस्टेक वर्क करेगी। बट अगर तुम कट ऑफ के क्लोज रह रहे हो तो तुम्हारा एक सिली मिस्टेक भी तुम्हारा प्रोसेस बिगाड़ सकती है। तो मतलब सिली मिस्टेक का स्कोप नहीं है। एक एक क्वेश्चन को रीड करो अच्छे से और उसके बाद करो सॉल्व, क्योंकि बहुत कम डिफरेंस होता है कट ऑफ और जिसका सिलेक्शन रुकता है। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि बीए सेक्शन में ऑलमोस्ट सब लोग ले आते हैं। क्यूए में काफी ज्यादा तुम आगे बढ़ सकते हो, रेंज काफी अपने स्कोर की बढ़ा सकते हो रेंज। तो क्यूए सेक्शन भी तुम्हारे लिए इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। (52) question. Arup and Sharup leave point A at 8 AM to point B. Arup and Sharup, ठीक है, लीव कर रहे हैं। Arup and Sharup leave point A at 8 AM to point B. ठीक है, they have to walk first 2 kilometer. First 2 kilometer they have to walk. Then 4 kilometer by boat and complete the final 20 kilometer by car. ठीक है। Now Arup and Sharup walk at a constant speed of 4 kilometer per hour and 5 kilometer respectively. मतलब जब वॉक करते हैं तो जो एक की स्पीड है वो 4 है, सेकंड की स्पीड 5 है। Each rows boat for 30 minutes. मतलब इसमें जो टाइम ले रहे हैं they are taking 30 minutes. Arup drives his car at a constant speed of 50 and 40. Speed are 50 km per hour and 40 km per hour. If no time is wasted in transit, then when will they meet again? ठीक है।
when will they meet again। मतलब पहले हम लोगों को ये निकालना होगा कि जिसकी स्पीड तेज फास्ट चल रहा है वो बी तक किस टाइम पे पहुंच रहा है, और जिस टाइम पे बी पर पहुंचा है, मतलब लेट करो अरूप को, अगर अरूप को हम लोग पिक करते हैं, एंड अरूप अगर बी पर जिस पॉइंट पे पहुंचा उस पॉइंट पे हम लोग को चेक करना होगा कि स्वरूप कहां पर पहुंचा है। पहले तो हम लोगों को ये पोजीशन देखनी होगी कि अरूप और स्वरूप बी पॉइंट पे किस टाइम पे पहुंच रहे हैं, और फास्टर रनर बी पर किस पॉइंट पर पहुंच रहा है, किस टाइम पे पहुंच रहा है, एंड दैट टाइम स्वरूप और अरूप किस पॉइंट पर है। तब उन दोनों के बीच का गैप मिल जाएगा हमें, एंड वी कैन अप्लाई मैनी मेथड्स। हम लोग बस काफी उस पोजीशन पे मेथड्स होते हैं। वी कैन अप्लाई डिस्टेंस अप्रोच और वी कैन अप्लाई रिलेटिव स्पीड अप्रोच, है ना। बट हम लोगों का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप हम लोग का ये है कि वी विल चेक व्हेन अरूप और स्वरूप विल रीच एट पॉइंट बी। ठीक है, पहले अरूप के लिए हम लोग चेक करते हैं। फर्स्ट 2 किलोमीटर अरूप ने 4 किलोमीटर बाई बोट कवर किया है। फर्स्ट 2 किलोमीटर जो है विथ 4 स्पीड उसकी 4 है, मतलब टाइम कितना लगा होगा उसको? 0.5 आवर्स। He will take 0.5 hour to cover that 2 kilometer by walk. Now next 30 minute by boat, that means 0.5 hours और लगे होंगे बोट से कवर करने में ना। बोट के लिए दोनों का 30 मिनट है। अरूप ड्राइव्स हिज कार एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 50 की कांस्टेंट स्पीड से 20 किलोमीटर कवर किया है। दैट मीन्स उसने 0.4 आवर यहाँ पे कवर किया। दैट मीन्स टोटल टाइम कितना लगा? 1.4 आवर्स। टोटल टाइम जो है 1.4 आवर है। 1.4 आवर में वो बी पर पहुंच गया होगा। ठीक है, 1.4 आवर 8 AM पे अपनी जर्नी स्टार्ट करिए। 1.4 मतलब 9:24 ना, 9:24 AM पे वो बी पर होगा अपनी पोजीशन पे, बी पोजीशन पे 9:24 पे होगा। अब उस टाइम पर स्वरूप कहां पे है पहले हम लोग को ये फाइंड करना होगा। स्वरूप ने फर्स्ट 2 किलोमीटर 5 की स्पीड से कवर किया, दैट मीन 0.4। नेक्स्ट 30 मिनट 0.5 and next 20 kilometer by speed of 40, that means 0.5. that means again time taken is 1.4. time taken is 1.4, that means he will reach B at 9:24 AM. that means when will they meet again? कब मीट करेंगे अगेन? at 9:24 अगेन मीट कर रहे हैं। that means your answer will be D part। इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट प्रोसेस से अगर तुम समझो ना, तो तुम देख सकते थे कि पहले जो स्पीड का रेशियो है और जो बाद में स्पीड का रेशियो है, जो पहले स्पीड है तुम्हारी, जो स्पीड का फर्स्ट रेशियो है दैट इज 4:5, और बाद में स्पीड का रेशियो कितना है? दैट इज 5:4। पहले स्पीड का जो रेशियो है दैट इज 4:5 एंड बाद में रेशियो कितना है? 5:4। फर्स्ट वो कवर कर रहा है 2 किलोमीटर, बाद में वो कवर कर रहा है 20 किलोमीटर, लेकिन स्पीड का जो डबल, ये 10 टाइम्स हो गई है ना। देखो पहले 2 किलोमीटर जो था स्पीड 4 और 5 से कवर कर रहे थे, बाद में 20 किलोमीटर जो है वो 50 और 40 से कवर कर रहे हैं। दैट मीन्स 2 किलोमीटर किससे कवर करते? 5 और 4 से कवर करते। दैट मीन्स फॉर द इक्वल डिस्टेंस देयर स्पीड इज इनवर्स। इक्वल डिफरेंस के लिए, इक्वल डिस्टेंस के लिए स्पीड का रेशियो क्या हुआ है? चेंज हो गया है। दैट मीन्स टाइम रेशियो विल बी चेंज्ड। टाइम भी इक्वल होगा लेकिन वो चेंज हो जाएगा ना टाइम। अगर पहले केस में लेट करो उसको 40 मिनट्स लग रहे थे तो नेक्स्ट केस में 30 लग रहे थे, तो पहले केस में 30 और 40 चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स टाइम टेकन विल बी सेम इन दिस केस। और अगर टाइम टेकन बी तक पहुंचने का सेम है, दैट मीन्स दे विल मीट एट बी पॉइंट अगेन। वो बी पॉइंट पर अगेन मीट करेंगे। दैट मीन्स योर आंसर विल बी 9:24। कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा? एनी डाउट टू एनीवन? Any doubt? Because if distance is equal, then time is inversely proportional to speed. No, the same concept we can apply here, or we can solve this by basic concepts. फिर से एक बार थोड़ा सा देख लो, क्योंकि फर्स्ट 2 किलोमीटर दे आर ट्रेवलिंग बाई 4। पहले 2 किलोमीटर उनकी स्पीड का रेशियो कितना था? 4 और 5 थी। अनूप की स्पीड 4 थी और स्वरूप की स्पीड 5 थी। जो लास्ट के 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर उसमें इसकी स्पीड 50 है और इसकी स्पीड 40 है। दैट मीन्स फॉर 2 किलोमीटर
अगर मैं 2 किलोमीटर के लिए इसको सोचूं, 20 किलोमीटर जो कवर करना है, अगर मैं इसको 2 किलोमीटर के लिए सोचूं, तो जो इस डिस्टेंस अगर मैं इसकी कांस्टेंट कर दूं, डिस्टेंस अगर मैं 2 कर दूं, स्टिल स्पीड विल बी सेम ना, स्पीड का जो रेशियो होगा दैट विल बी सेम और नॉट। 20 किलोमीटर के लिए जो स्पीड 20 किलोमीटर कार से कवर कर रहा है ना, कार से जो कवर कर रहा है डिस्टेंस वो 20 किलोमीटर है, वो 2 किलोमीटर भी कवर करेगा विद द सेम स्पीड। दैट मींस स्पीड रेशियो विल स्टिल द सेम। जो फर्स्ट केस में स्पीड रेशियो है दैट इज 4:5, जो सेकंड केस में स्पीड रेशियो है दैट इज 5:4। दैट मीन जो स्पीड रेशियो तुम्हारा बन रहा है दैट इज सेम। तो अगर स्पीड रेशियो तुम्हारा सेम बन रहा है वहां पे, दैट मीन्स टाइम रेशियो विल बी, मतलब स्पीड रेशियो अगर चेंज हुआ है ना, पहले 4:5 था, इसका 5:4 हो गया, दैट मीन्स टाइम भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। इससे हम लोग को ये चीज पता चल जाएगी कि दे विल मीट एट बी पॉइंट, वो हम लोगों के बी पॉइंट पर मीट करेंगे। और अननेसेसरी जो टू एंड फ्रो का कॉन्सेप्ट होता था, हम लोगों को उस थॉट प्रोसेस पे नहीं जाना होगा, बस सिर्फ इतना। बाकी तो तुम अगर बेसिक मेथड से स्टार्ट करोगे अपना प्रोसेस, देन ऑटोमेटिकली यू विल गेट योर आंसर एट 924। अगर इन केस तुम्हारे पास, फिर से थोड़ी सी और चीज सुन लो कि कहां पे तुम वो थोड़ी सी मतलब आईक्यू यूज करके हम लोग आंसर्स इलिमिनेट कर सकते हैं। इन केस तुम्हें पता चलता कि 924 पे अनूप पहुंच रहा है और स्वरूप को 924 से थोड़ा ज्यादा टाइम, स्वरूप अभी तक बी पॉइंट पे नहीं पहुंचा है, ए से जर्नी स्टार्ट हुई है और बी पॉइंट पे अनूप पहले पहुंच गया। कोई केस होता, कुछ इसमें दी होती कंडीशंस कि अनूप की स्पीड ज्यादा हो रही होती है ना, अभी तो बी पे मीट कर गए हैं बट अनूप की स्पीड ज्यादा दी होती और अनूप बी पॉइंट पे पहुंच जाता विद सेम ऑप्शंस, और स्वरूप यहाँ पे अपनी डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो अगर मुझे पता है कि बी पॉइंट पे 924 पे अनूप पहुंचा है और अभी तक स्वरूप वहां नहीं पहुंचा है, देन आंसर विल बी ग्रेटर देन 924। आंसर की जो वैल्यू होगी दैट विल बी ग्रेटर देन 924 am। तो हम लोगों को स्टिल वी विल नॉट अप्लाई टू एंड फ्रो कॉन्सेप्ट हियर, वी कैन टिक ई एज अवर ऑप्शन। हम लोग ई एज अवर आंसर टिक कर सकते हैं बिकॉज आंसर विल बी ग्रेटर देन 924 am। इसके बाद तुम्हें सॉल्व करने की नीड नहीं है बिकॉज क्योंकि ए की जर्नी अपने अरूप अब ए बी पर 924 पे पहुंच चुका है, इसके बाद ही मीटिंग होगी, दैट मीन्स योर आंसर विल बी 938। अगर मैं अब इससे पहले, समझ गए कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा, 930 क्यों आ रहा है, ई क्यों आंसर होता अगर अनूप पहले वहां पे पहुंच जाता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Hari's family consisted of his younger brother, younger sister, and their father and mother. When Chari was born, sum of ages of Hari and his mother and father was 70 years. The sum of ages of 4 family members at the time of Gauri's birth was twice the sum of ages of Hari's father and mother at the time of Hari's birth. If Chari is 4 years older than Gauri, then find the difference in age between Hari and Chari. अब इस क्वेश्चन में कुछ लोग कंफ्यूज होने के चांसेस होते हैं। कंफ्यूजन तब डेवलप होता है जब अननेसेसरी वेरिएबल्स लिए जाते हैं, अदरवाइज कंफ्यूजन होने के इन क्वेश्चंस में चांसेस नहीं होने चाहिए। लेकिन अननेसेसरी अगर 6 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, 5 वेरिएबल पहले से बना के बैठ जाओगे ना दिमाग में, तब तुम्हारे पास चांसेस होंगे कि तुम इसमें कंफ्यूज हो। अगर अननेसेसरी वेरिएबल्स नहीं बनाओगे तब हाई चांसेस है कि तुम कंफ्यूज ना हो, लेकिन अगर तुम वेरिएबल्स बनाओगे तो चांसेस, हाई चांसेस होंगे कि कंफ्यूज हो किसी पॉइंट। ठीक है, स्टार्ट देखो। जैसे कह रहे हैं कि when Chari was born, the sum of ages of Hari and his father and mother was 70 years. Hari, father, mother की एज का जो सम था 70 years था। जब चारी की एज कितनी थी, 0 थी। जब चारी की एज 0 थी तो हरी, फादर एंड मदर्स एज सम वाज 70 years. The sum of ages of 4 family members at the time of Gauri's birth. अच्छा, गौरी और चारी की एज में 4 years का डिफरेंस दिया होगा। जब गौरी बॉर्न हुई होगी तो चारी की एज कितनी होगी, दैट विल बी 4 years, बिकॉज जब चारी बॉर्न हुई है उसकी एज 0 years होती है ना, जब बॉर्न होते हैं 0 year मानते हैं, ठीक है ना। तो चारी और गौरी के एज का डिफरेंस दिया हुआ है, दैट इज 4। चारी इज 4 years ओल्डर देन गौरी, दैट मींस एट गौरीज बर्थ चारी विल बी 4 years। चारी की एज कितनी होगी, 4 years। अच्छा, इन सबकी एज में कितना इंक्रीमेंट हो गया होगा, हरी मतलब हरी की एज 4 year इंक्रीज हो गई होगी, फादर की एज 4 year इंक्रीज हो गई होगी, मदर की एज भी 4 year इंक्रीज हो गई होगी।
दैट मीन्स ओवरऑल इंक्रीमेंट कितना हो गया, 16 का ओवरऑल इंक्रीमेंट हो गया। हरी की एज भी 4 ईयर के बाद 4 ईयर इंक्रीज हुई होगी, फादर की एज भी, मदर की एज भी एंड चारू की एज भी, जब गौरी का जन्म हुआ, जब गौरी का बर्थ। ठीक है, दैट मीन्स 70 से कितना आ गया होगा चेंज, 70 से 86 बन गया होगा ये, जब तुम्हारी गौरी का बर्थ हुआ 86 आ गया। अब मुझसे पूछ क्या रहा है कि फाइंड द डिफरेंस इन एज बिटवीन हरी एंड चारू। ये 86 का तुम्हारे पास 86 आ गया। ठीक है, अब क्या रहा है क्वेश्चन, द सम ऑफ एजेस ऑफ 4 फैमिली मेंबर्स एट द टाइम ऑफ गौरीज बर्थ वाज ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ हरीज फादर एंड मदर एट टाइम ऑफ हरीज बर्थ, was twice the sum, twice, that means this value is twice the sum of ages of Hari's father and mother at the time of Hari's birth. That means father plus mother की जो age होगी when Hari was at 0 year age, हरी की age जब 0 थी तो father plus mother की age कितनी रही होगी, that will be 43। सिंपल सी चीज है कि हरी फादर और मदर और चारू की एज एट टाइम ऑफ गौरीज बर्थ वाज 86। नाउ फादर एंड मदर्स एज वाज ट्वाइस ऑफ दिस वैल्यू, मतलब ये वैल्यू जो है फादर और मदर की एज की ट्वाइस है। दैट मीन्स एट हरीज बर्थ फादर और मदर की एज कितनी रही होगी, 43 रही होगी। अब वो कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंस इन एज बिटवीन हरी एंड चारू। अब अगर मैं देखूं बेटा तो मेरी ये 43 है, और जब हरी, अब इसमें लेट करो जब चारी बॉर्न हुई, जब चारी बॉर्न हुई है, हरी की एज और चारी की एज के बीच का डिफरेंस जो है दैट इज एक्स, हरी और चारी की एज के बीच का डिफरेंस जो है दैट इज एक्स। दैट मीन्स जब हरी बॉर्न हुआ है 0 एज, अब जब चारी बॉर्न हुई है तो फादर की एज भी एक्स बढ़ी होगी, मदर की एज में एक्स का इंक्रीमेंट हुआ होगा, हरी की एज में भी एक्स का इंक्रीमेंट हुआ होगा। दैट मीन्स इट विल बी 43 plus 3x, that will be equal to 70 because it's given that 70. So 3x will be equal to 27, so x will be equal to 9, and that is the difference in age between Hari and Chari. So without forming any A, B, C, D, E, T type of conditions, you can solve by basic approach. तुम basic उसको रखो कि कितना इंक्रीमेंट और कितना डिक्रीमेंट हो सकता है, you can solve this question without any confusion. ठीक है ना, जैसे किसी को डाउट क्लियर है ये क्वेश्चन? क्लियर की एक बार और समझाऊं, क्लियर है? एक बार फिर से देख लो, फिर से एक बार देख लो। कह रहा है कि हरीश फैमिली कंसिस्टेड ऑफ हिज यंगर ब्रदर चारी, यंगर सिस्टर गौरी एंड देयर फादर एंड मदर। When Chari was born, sum of ages of Hari, his father and mother was 70 years. When Chari was born, that means when Chari's age was 0 years, then Hari, his father and mother's age was 70 years. ठीक है, 70 years. The sum of ages of 4 family members at the time of Gauri's birth, and it's given that Chari is 4 years older than Gauri. That means जब गौरी का बर्थ हुआ होगा तो चारू की एज कितनी होगी, चारी की एज that will be 4 years. That will be 4 years. एंड हरी की एज में कितने का इंक्रीमेंट हुआ होगा, दैट विल बी 4। फादर की एज में कितने का इंक्रीमेंट हुआ होगा, दैट विल बी 4। मदर की एज में कितने का इंक्रीमेंट हुआ होगा, दैट विल बी 4। दैट मींस ओवरऑल इंक्रीमेंट ऑफ 16। एज में ओवरऑल इंक्रीमेंट कितना होगा, दैट विल बी 16। सो 70 विल शिफ्टेड टू 86। 86 एज हो गई होगी व्हेन गौरीज एज वाज 0, जब गौरी की एज 0 थी, देन टोटल सम ऑफ चारू, हरी, फादर, मदर वाज 86। नाउ इट्स गिवन दैट द सम ऑफ एजेस ऑफ 4 family members at time of the Gauri's birth was twice. This 86 is twice the age of Hari's father and mother at the time of Hari's birth. That means this is twice the sum of ages of Hari's father and mother at times of Hari's birth. That means when Hari was 0 year old, then his father and mother's age will be 43. It's given that the sum of ages of 4 family members at the time of Gauri's birth was twice the sum of ages of Hari's father and mother at the time of Hari's birth. हरी जब 0 ईयर का था तो फादर और मदर की एज कितनी थी, दैट वाज 43, और
चारू हरी फादर मदर की एज का सम कितना है जब गौरी की बर्थ है, दैट इज 86. सो फादर प्लस मदर की एज कितनी आ गई, 43 आ गई. नाउ वी वांट टू फाइंड डिफरेंस इन एज बिटवीन हरी एंड चारी. नाउ हरी की एज 0 थी, लेट करो आफ्टर x ईयर चारी वाज बोर्न. आफ्टर x ईयर व्हाट विल बी एज ऑफ हरी, दैट विल बी x. What will be age of father, that will be increased by x. What will be age by mother, that will be increased by x. That means overall increment will be 3x when Chari was born. That means 43 plus 3x, that will be equal to 70. That means हरी की एज, हरी से जब हरी की बर्थ से चारी की बर्थ में जो डिफरेंस था that was x years. So x and father की एज भी x से इंक्रीमेंट होगा, मदर की एज भी. That means 43 plus 3x, that will be 70. So 3x will be 27. So x will be 9. That means the difference between Charu's age and Hari's age will be 9. Any doubt to anyone? So without forming any random equations, है ना, इक्वेशंस का बहुत ज्यादा फॉर्मेशन पे मत जाओ, जस्ट बेसिक अगर लॉजिक से वर्क करोगे, दैट विल बी अ क्विक अप्रोच एंड यू कैन सॉल्व विदाउट एनी कंफ्यूजन. Any doubt to anyone? Now next question is, in a true false quiz 4 marks are awarded for each correct answer. That means it is +4 and 1 marks is deducted from each wrong answer. That will be -1. +4 -1 का सिनारियो चल रहा है. A, B and C answered the same 10 question and their answers are given below in same sequential order. Now Amit and Ben both scored 35 marks. That means अगर X उन्होंने करेक्ट दिए और Y रॉन्ग दिए, that means 4x minus y is equal to 35 and x plus y is given as 10. That means 5x will be equal to 45. So x will be equal to 9 and y will be equal to 1. That means अमित ने कितने करेक्ट आंसर दिए, 9 करेक्ट, एंड बेन ने भी कितने करेक्ट आंसर दिए, 9 करेक्ट. तो अमित और बेन के कितने करेक्ट आंसर है, 9 करेक्ट आंसर्स हैं. आउट ऑफ 10 9 करेक्ट और एक रॉन्ग अगर देंगे, सो दे विल गेट 35. नाउ वी वांट टू फाइंड चित्राज स्कोर. चित्रा का स्कोर कितना होगा. देखो पहला दोनों ट्रू दे रहे हैं, दोनों ने ट्रू दिया मतलब करेक्ट होगा पहला, दूसरा भी करेक्ट होगा. पहले हम लोग सेम वाले, तीसरा करेक्ट, चौथा करेक्ट, पांचवा करेक्ट, सिक्स्थ करेक्ट, सेवेंथ करेक्ट, एट्थ करेक्ट. ना आउट ऑफ दिस अगर अमित ने आंसर फॉल्स दिया है तो बेन का गलत होगा अगर फॉल्स वाला, क्योंकि ट्रू और फॉल्स क्विज है ना. अमित ने लेट करो आंसर दिया फॉल्स और उसका आंसर फॉल्स होता है तो बेन का रॉन्ग होगा. तो मतलब इसमें या तो ये इसका करेक्ट होगा और ये रॉन्ग होगा, और इसका ये रॉन्ग होगा और ये करेक्ट होगा, है ना. दोनों में एक करेक्ट और एक रॉन्ग हो रहे होंगे. इन दोनों में अमित का एक रॉन्ग, अमित ने अगर फॉल्स आंसर दिया और उसका आंसर फॉल्स हुआ तो ये करेक्ट हो गया और ये रॉन्ग हो गया, और बेन ने ट्रू दिया है तो ये रॉन्ग हो गया और फॉल्स वाला उसका करेक्ट हो गया. दैट मींस आउट ऑफ दिस थर्ड and fifth choices, one answer of Amit will be correct and one answer of Ben will be correct. तभी 9 correct और एक wrong. Now we want to find चित्रा's score. True दिया यानी ये correct है इसका, इन्होंने भी true दिया ये correct. थर्ड वाला अगर थर्ड का false आंसर होगा तो इसका wrong हो जाएगा. अगर थर्ड का false आंसर हुआ तो फिफ्थ का आंसर क्या होगा, that will be true. तो इसका ये भी wrong हो जाएगा. देखो अगर इसका आंसर true हुआ तो इसका ये correct हो गया. अगर इसका आंसर फॉल्स हुआ, अगर इसका आंसर देखो एक इसमें से ट्रू है एक इसमें से फॉल्स है, तो एक ट्रू और फॉल्स, फॉल्स और ट्रू, तो मतलब एक आंसर इसमें से रॉन्ग होगा और एक आंसर इसमें से चित्रा का करेक्ट होगा. बाकी देखो ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया, ये करेक्ट और ये रॉन्ग हो गया. दैट मीन्स आउट ऑफ 5 ऑप्शंस, देखो थोड़ा स्पेस कम है ना इसमें, देखो दोनों ट्रू ट्रू हो गया, ट्रू ट्रू करेक्ट हो गया, ठीक है. फॉल्स फॉल्स करेक्ट हो गए, ट्रू ट्रू करेक्ट हो गए, फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू, फॉल्स. मतलब ये 8 क्वेश्चंस तो इनके पास करेक्ट हो गए. अब अमित और बेन को एक रॉन्ग चाहिए और एक करेक्ट, 9 करेक्ट चाहिए. 8 दोनों के हम लोगों ने करेक्ट पिक कर लिए, है ना. 8 करेक्ट हम लोग को मिल गए. अब अगर किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का ऑप्शन लेट करो फॉल्स होता है, उसका आंसर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसका आंसर फॉल्स है, दैट मींस अमित ने उसका इसको करेक्ट दिया, इसका थर्ड क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दिया, तो बेन ने इसका आंसर रॉन्ग दिया क्योंकि उसने ट्रू बोला है इसको, तो ये रॉन्ग हो.
तो इसके अमित के 9 करेक्ट हो गए, दैट मीन्स इसका आंसर ट्रू नहीं हो सकता, तो इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। और इसका रिवर्स भी ट्रू है तुम्हारे पास, है ना। अगर अमित ने इसका आंसर करेक्ट दिया है तो ये इसका फॉल्स होगा और ये इसका करेक्ट होगा और ये इसका फॉल्स होगा, मतलब ये इसका फॉल्स होगा और ये करेक्ट। तो दिस इज द सिनारियो कि एक ऑप्शन आउट ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ क्वेश्चन अमित का एक आंसर करेक्ट होगा और एक रॉन्ग होगा। सेम फॉर बेन, एक आंसर करेक्ट होगा एक रॉन्ग। अगर थर्ड क्वेश्चन अमित का रॉन्ग हुआ है, करेक्ट हुआ है, तो चित्रा का रॉन्ग होगा, और फिफ्थ क्वेश्चन फिर बेन का करेक्ट होगा तो चित्रा का करेक्ट हो जाएगा। मतलब आउट ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ क्वेश्चन चित्रा का सिर्फ एक रॉन्ग होगा और एक करेक्ट होगा, ये मुझे पता है। कौन सा होगा करेक्ट रॉन्ग ये हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, बट वन क्वेश्चन ऑफ Chitra will be correct and one question of Chitra will be wrong out of these two possibilities. Now, this is correct, this is correct, this is wrong, this is wrong, this is wrong, this is wrong, and this is correct, and this is wrong. That means 2 plus 1, 3, and out of these two options, one will be correct. So, what will be score of Chitra? That will be 5 into 4, 20 हो गया, minus 4 correct है, 5 wrong है, minus 5. That means answer will be 50. So score of Chitra will be 50. That will be it. Any doubt to anyone? Oh, sorry. 4 correct और 6 wrong है. Sorry. 1, 2, 3, 4 correct है ना. 4 into 4 minus 6. That means it will be 16 minus 6, 10. Answer will be 10. Process clear हो गया ना. 4 into 4 minus 6. I hope process clear हो ना. Yes, it will be 10. हाँ 4 करेक्ट है चित्रा के, प्रतीक 4 करेक्ट है। Yes, Pratik 4 correct, 6 incorrect, 4 into 4 minus 6, that's why answer will be 10. Now, in a class of 60, this is set theory, typical set theory question. और एक बहुत chances रहते हैं JET में that you will get a set theory question. In 2016 there was a question of set theory, in 2017 there was a direct question of set theory. तो so there is possibility that you will get a question from set theory section. ठीक है, start करते हैं. In a class of 60, along with English as a common subject, English a common subject है तुम्हारा. Student can opt to major in mathematics, physics, biology or a combination of any two. Combination of any two, but not a combination of any three. ठीक है. There is a mathematics section, there is a physics section, there is a biology section. Combination of any two, but not a combination of any three. That means this will be 0. All three section will be 0. 6 student major in both mathematics and physics. 6 will be here, mathematics and physics. 15 major in both physics and biology. 6, 15 here. Now, but no one majors in both mathematics and biology. That means this section will be 0. Now, in an English test, the average marks stored by students measuring in mathematics is 45. Average marks in mathematics. Mathematics में जो average marks हैं, that is 45. Let करो कि इसके students जो हैं x हैं, तो total marks कितना हो जाएगा? That will be 45 in mathematics. ठीक है, x students हैं, average 45 है, तो total marks कितना हो जाएंगे? That will be 45 in mathematics. In mathematics. That of student measuring in biology is 60. तो biology में कितने होंगे? Let करो y students हैं, 60 average है, so total score that will be 60y. Okay. However, the combined average of these two measures, मतलब mathematics और biology का combined average 50 है, तो 50 x plus y that will be total. That means 45x plus 60y that will be equal to 50x plus y. So 5x will be equal to 10y. So x will be equal to 2y. That means the number of students in biology section, number of students in mathematics section, that will be double of biology section. जितने भी number of students होंगे mathematics में, वो double किसके होंगे? That will be double of biology section. Okay, ठीक है. Now we want to find total कितने student है? 60 students हैं.
Now, what is the maximum possible number of students who measure only in physics? फिजिक्स में केवल कितने मेजर कर रहे हैं? Now, फिजिक्स में अगर हम लोग को only फिजिक्स इस पोर्शन में लेट करो x है, इसको मैक्सिमाइज करना है. That means other portion should be as mean as possible. But we have to satisfy this condition that mathematics should be double of biology. Now, बायोलॉजी में हम लोग एज मीन एज पॉसिबल रखने का ट्राई करेंगे. दैट मीन्स टोटल बायोलॉजी में कितने 15 है. दैट मीन्स मैथमेटिक्स में कितने स्टूडेंट होंगे? दैट विल बी 30 स्टूडेंट्स. तो मैथमेटिक्स में ओनली मैथमेटिक्स में वी हैव टू गिव 24 है बिकॉज 15 बायोलॉजी में है. इट्स गिवन कंडीशन. सो मैथमेटिक्स सेक्शन में कितने होंगे? दैट विल बी 30. सो 30 प्लस कितने आ गए तुम्हारे पास? 30 प्लस 15 45. 45 ये हो गए तुम्हारे पास. तो फिजिक्स सेक्शन में कितने जाएंगे? ओनली फिजिक्स सेक्शन में. ओनली फिजिक्स सेक्शन में मैक्सिमम कितने होंगे? दैट विल बी 50 बिकॉज 45 विल बी इन मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी. सो ओनली फिजिक्स सेक्शन में 15 मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. सो आंसर विल बी डी पार्ट. एनी डाउट टू एनीवन? easy but use of not combined average marks in English of students of these two majors. मतलब बायोलॉजी और जो मैथमेटिक्स का जो एवरेज है उनका कंबाइंड. क्योंकि इंग्लिश तो एक कॉमन सब्जेक्ट हो ही रहा है, वो तो कॉमन है, उसके लिए तुम्हें कुछ रखने नहीं. देयर इज अ बायोलॉजी सेक्शन एंड देयर इज अ मैथमेटिक्स सेक्शन. इंग्लिश तो उनके साथ कॉमन हमेशा आ ही रहा है तुम्हारा. और बायोलॉजी और जो तुम्हारा मैथमेटिक्स है उनका जो, फिर से देख लो बेटा, जो मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी है एंड यू वांट टू फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सो ओनली मेजर इन फिजिक्स. ओनली फिजिक्स सेक्शन को मैक्सिमाइज करना है. दैट मींस वी वांट टू मिनिमाइज अदर सेक्शंस ना. और तुम्हें इट्स गिवन दैट ओनली मैथ्स को जो ओनली बायोलॉजी ऑलरेडी लक्ष्य 15 है ना. इट्स गिवन दैट ओनली बायोलॉजी इज 15. अगर मैथमेटिक्स को ओनली मैथमेटिक्स को 0 रख दोगे तो मैथमेटिक्स सेक्शन में 6 होंगे. मैथमेटिक्स सेक्शन में 6 हो पाएंगे ना तुम्हारे. बट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स सेक्शन शुड बी डबल ऑफ बायोलॉजी सेक्शन. और बायोलॉजी में कितने स्टूडेंट गिवन है? दैट इज 15. सो मैथमेटिक्स सेक्शन में मिनिमम कितने होंगे? दैट विल बी 30. सो यू हैव टू गिव 24 हियर. सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी विल बी 45. दैट मींस ओनली फिजिक्स पार्ट विल बी 50. सो योर आंसर विल बी no. X belongs to 5 degree and 15 degree. The value of sin 30 degree plus cos x degree minus sin x degree will be. ठीक है, between -1 and -0.5, between -0.5 and 0. बेटा एवरेज है ना. एक जगह पे मैथमेटिक्स का एवरेज है, टोटल निकाला मैथमेटिक्स का. एक जगह पे बायोलॉजी का टोटल निकाला. दोनों ओवरऑल टोटल विल बी इक्वल टू टोटल एवरेज ना. टोटल को तो इक्वल कर सकते हैं ना. जो मैथमेटिक्स का टोटल है प्लस बायोलॉजी का टोटल है दैट विल बी इक्वल अदर पार्ट ना. दोनों पार्ट्स तो इक्वल ही होंगे ना. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि x बिलोंग्स टू 5 डिग्री एंड 15 डिग्री. द वैल्यू ऑफ sin 30 प्लस cos x माइनस sin x. पहले थोड़ी सी एक बेसिक चीज समझ लो कि व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ sin x प्लस cos x इन नॉर्मल कंडीशन. जो sin x प्लस cos x की जो वैल्यूज होती है इट विल वेरी फ्रॉम a sin x plus b cos x. a sin x plus b cos x इसकी मिनिमम वैल्यू होती है दैट विल बी माइनस रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड मैक्सिमम वैल्यू विल बी रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ठीक है, मिनिमम वैल्यू विल बी माइनस रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड मैक्सिमम वैल्यू विल बी रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. इसको समझ लो ये कैसे आई ये चीज. दैट यू हैव a sin x plus b cos x. Now if we divide this by root over of a square plus b square and we divide by root over of a square plus b square. ठीक है, and we will multiply it by root over of a square plus b square. क्यों हम लोग ये कर रहे हैं? देखो जरा, अगर हम लोग को ये लेते हैं, लेट करो दिस इज a, this is b and this is root over of a square plus b square. Now this angle is theta. What will be sin theta? Sin theta will be b upon root over of a square plus b square. What will be cos theta? Cos theta will be a upon root over of a square plus b square. Now this term is written as sin x into cos theta plus b upon root over of a square. This term is written as sin theta into cos x. That means this is written as sin theta plus x into root over of a square plus b square. Now we know that the minimum value of sin theta plus sin x या sin theta plus x
minimum value of sine function is -1 and maximum value of this will be +1. That means the range will be minus root over of a square plus b square and it will be plus root over of a square plus b square. That means a sin x plus b cos x की minimum value कितनी होगी? That will be minus root over of a square plus b square and maximum value will be root over of a square plus b square. Now solve this question and tell me your answer. फिर मैं दूसरा अप्रोच भी बता देता हूँ, इससे सॉल्व करो और आंसर बताओ कितना होगा. व्हाट विल बी आंसर ऑफ 56 क्वेश्चन. एक बार ट्राई करो 56 तो आंसर बता दो. देखो लेट करो, जैसे तुमने x की वैल्यू लेट करो 5 डिग्री ली, तुमने x की वैल्यू 5 ली. तुम्हें पता है बेटा कि cos 0 की वैल्यू जो होती है दैट इज 1. ऐसे ग्राफ होता है ना cos का, ये ऐसे जाता है. cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 0.5 की वैल्यू भी क्लोज टू 1 होगी तुम्हारे ना. इट विल बी क्लोज टू 1. दिस वैल्यू cos 5 डिग्री जो होगा दैट विल बी क्लोज टू 1. क्लोज टू 1 होगा ना, क्लोज टू 1. नाउ यू नो दैट sin 0 की वैल्यू कितनी होती है? दैट विल बी 0. sin 0 की वैल्यू अब यहाँ पे ऐसे बढ़ता है sin 0, तो 0.5 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? दैट विल बी क्लोज टू 0. 0.1 मान ले या 0.2 मान ले, इट विल बी क्लोज टू 0. दैट मीन दिस होल वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 0.5 फॉर श्योर. ये तो मैं ऐसे ही तुम लोग बता सकते हो आंख बंद करके कि ये वैल्यू जो होगी, दिस वैल्यू cos 5 डिग्री, अगर मैं cos 5 डिग्री माइनस sin 5 डिग्री की वैल्यू पूछूं, दिस विल बी ग्रेटर देन 0.5. क्लियरली 0.5 से बड़ी है. Now what will be value of sin 30? That will be 0.5. 1/2 sin 30 is 1/2. So 0.5 and one value is greater than 0.5. That will be greater than 1. No? So G -1 minus 0.5, all options are out of picture. So answer will be E part. No? Directly just basic concepts. और method है इसको solve करने के, लेकिन just क्योंकि उस एग्जाम कंडीशंस के लिए सब छोटी छोटी वैल्यू रख के यू कैन यूज अप्रोक्सीमेशन एंड यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. Any doubt to anyone? 56th question, any doubt? Any doubt to anyone? Now the volume of a pyramid with square base is 200 centimeter. ये एक स्क्वायर बेस का पिरामिड गिवन है, ठीक है. दिस इज एन स्क्वायर बेस पिरामिड. कैसे बनता है स्क्वायर बेस का? ठीक है. दिस इज स्क्वायर बेस ऑफ 200 सेंटीमीटर. वॉल्यूम ऑफ अ पिरामिड, वॉल्यूम क्या होता है पिरामिड का? दैट इज 1/3 इंटू वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट. दैट इज वॉल्यूम ऑफ पिरामिड. ठीक है ना. वॉल्यूम कितना गिवन है? दैट इज 200 इज इक्वल टू 1/3 बेस का एरिया, एरिया ऑफ बेस ए लेट कर लेते हैं, हाइट इज गिवन एज 13. सो एरिया विल बी 600/13. दैट विल बी एरिया ऑफ स्क्वायर. स्क्वायर का एरिया कितना होगा? दैट विल बी 600/13. दिस इज एरिया ऑफ स्क्वायर. दैट मीन्स ए स्क्वायर ना. अगर साइड में ए इसकी कहूं
दिस इज साइड ऑफ स्क्वायर, कर सकते हो, वही तो बताया, डायरेक्ट लाइन पे कर सकते हो अटैक। यू कैन यूज वो ऑप्शंस आल्सो ना, ऑप्शंस अप्रोचेस तो मैंने बताया ना 0.5 पे अटैक करके, यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन इजीली। So a square is equal to 600 by 13. So a will be equal to root over of 600 by 13. That means you have this value. तो ये वैल्यू दिखाई, ठीक है। अब तुम्हें बताना है कि what will be the length of slant edges, distance between apex and any other vertex. That means you want to find this length, this one. This is point let A and this is point B. Distance between apex and any other vertex. You want to find this. तुम्हें ये लेंथ फाइंड करनी, ठीक है, तुम्हें ये लेंथ तुम्हें फाइंड करनी है। नाउ हाइट कितनी गिवन है, दिस वैल्यू इज गिवन एज 13, ये वैल्यू तुम्हारे पास 13 गिवन है हाइट, ठीक है। इसको अगर थोड़ा सा वो मेंसुरेशन पार्ट में इसमें पिरामिड में डाउट है तो मैं एक सेशन मेंसुरेशन क्योंकि इंपॉर्टेंट है जेड के लिए, कैट के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं, जेड के लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो वी विल कंडक्ट अ सेशन ऑन मेंसुरेशन पार्ट, एक मेंसुरेशन पार्ट के जो अच्छे क्वेश्चंस है पिरामिड टाइप के, उस पर एक सेशन होगा, ठीक है ना। किसका अगर थोड़ा सा वीक है, अगर इस टाइप में इश्यू आता है उनको। सो दिस लेंथ इज गिवन एज ए एंड वी वांट टू फाइंड दिस वन, दिस ए बी लेंथ। नाउ दिस हाइट इज गिवन एज 13। नाउ दिस वैल्यू, this we want to find this value, our concentration is to find this value। अगर हम लोगों के पास ये वैल्यू आ जाएगी, we have this 13 and we can find this value, a b लेंथ हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब ये वैल्यू कैसे फाइंड करें, दिस इज एन स्क्वायर, ये तुम्हारे पास स्क्वायर बेस है एंड यू हैव दिस लेंथ हैज रूट 600 by 13, this length has root 600 by 13 and you want to find this is let m, ये लेंथ m है, तो m कितना होता है, दैट इज a रूट 2 ना, m की वैल्यू a रूट 2 होगी ना, दैट मींस इट विल बी 600 by 13 into root 2, this will be value of m। now this is half of this total value, this diagonal of square का half होगा, तो half अगर करें this will be root over of 600 by 13 into root 2 by 2, that means root over of this will be root 2, this will be 300 by 13, this value will be 3 root over of 300 by 13। now this is root over of 300 by 13, this is 13 and you can find this length will be root over of 300 by 13 plus 13 and this will be 13 3, that means it will be approximately 50 rounded off, ठीक है। तो ये एक अप्रोच है इसको सॉल्व करने का, जिसके लिए मेंसुरेशन का पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट होता है। एक्चुअली में वी कैन आल्सो यूज अप्रोक्सीमेशन, एक और डायरेक्ट इसका फॉर्मूला भी होता है इसी पर, जो लेंथ ऑफ स्लैंट एजेस का, वो हम लोग मेंसुरेशन की क्लास में पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 58। 58 इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर Z। 58 is an important question for Z क्योंकि 2 से 3 बार रिपीट हुआ है Z में, 2 से 3 बार ये क्वेश्चन Z में रिपीट हुआ है तुम्हारे, ये रिपीटेड क्वेश्चन है इस टाइप का Z के लिए, ठीक है। 16 क्वेश्चन अगर देखो, कह रहा है कि अ डाइस इज रोल्ड ट्वाइस, अगर डाइस को ट्वाइस रोल्ड कर रहे हैं दैट मींस हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज विल बी देयर विल बी 36 पॉसिबिलिटीज, नाउ 36 पॉसिबिलिटीज। Now, what is the probability that number in second roll will be higher than that in first? ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चंस में we can apply logic here. Number in second roll will be higher than that in first. अब क्योंकि यहाँ पर 6 पॉसिबिलिटीज ऐसी आएंगी जिनमें नंबर इक्वल होगा, 1 1 होंगे, 2 2 होगा, 3 3 होगा, 4 4 होगा, 5 5 होगा एंड 6 6 होगा। That means out of 36 possibilities, there are 6 possibilities in numbers will be equal. Now rest 30 possibilities। अब कोई पॉइंट ही नहीं है बेटा कि किसी एक दो पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि तुम्हारे पास या तो वो चीज है या तो नहीं है। अगर दो में एक कोई पर्टिकुलर पॉसिबिलिटी कर रहा हूं, देयर विल बी हाफ पॉसिबिलिटी ऑफ दैट। अगर तुम्हारे पास 30 पॉसिबिलिटीज रह गई, दैट मींस आउट ऑफ 30 पॉसिबिलिटीज इन 15 पॉसिबिलिटीज सेकंड नंबर विल बी ग्रेटर देन फर्स्ट, in the 15 possibilities first roll will be greater than first। that means out of 36 possibilities 6 possibilities will be equal and rest 30 possibilities, in rest 30 possibilities 15 possibilities second roll will be higher than the first and in 15 possibilities first roll will be higher than second। that means your answer will be 15 by
36. So your answer will be C. You can directly solve this question. That answer will be 15 by 36. और काफी मेथड है. You can directly pick two numbers. अगर दो नंबर तुम पिक कर रहे हो, फिर दूसरा मेथड देखो. अब तुम 6 में से दो नंबर कोई पिक कर रहे हो. यू आर पिकिंग टू नंबर्स आउट ऑफ 6 नंबर्स. अब उन दो नंबर्स को अरेंज करने का देयर इज ओनली वन वे टू अरेंज देम, बिकॉज इफ यू आर पिकिंग 2 and 1 and you want second number to be greater than first number, that means you will arrange them like this. If you are picking 3 and 4 and you want first number will be greater than second number, that means 4 should be greater than 3. There is only one way. That means 6C2 by 36. That will be your answer. So 15 by 36 will be your answer. So there are multiple ways to solve this type of questions, but concept clear होना चाहिए. और तुम calculated manually calculation तो lengthy है, वो ये थोड़ा टाइम सेव कर सकते हो. पहले प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है कि तुम चांसेस देख रहे हो कि किसी एक पर्टिकुलर चीज के आने के चांसेस कितने हैं. आउट ऑफ 36 पॉसिबिलिटीज 6 पॉसिबिलिटीज विल गिव यू इक्वल चांसेस कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 6 will be there. Now out of rest 30 possibilities, there is no reason that in first roll you will get more number to second roll more number of times. मतलब ज्यादा बार फर्स्ट रोल में तुम्हारे सेकंड रोल से ज्यादा है, देयर इज वो पॉसिबिलिटी नहीं हुई ना तुम्हारी. ये तो एक मतलब अगर तुम्हें पता है तो पता है, वरना पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है कि आउट ऑफ 30 पॉसिबिलिटीज इन 15 पॉसिबिलिटीज फर्स्ट रोल विल बी ग्रेटर देन सेकंड, इन रेस्ट 15 पॉसिबिलिटीज सेकंड रोल विल बी ग्रेटर देन फर्स्ट रोल. दैट मींस योर आंसर विल बी 15 by 36. सो यू कैन, अभी तक तुम लोगों ने इतने क्वेश्चंस में देखा होगा कि काफी क्वेश्चंस तुम इजीली सॉल्व कर सकते थे और मैनुअली सॉल्व कर सकते थे. मतलब तुम्हें बिना काउंटिंग के या बिना मतलब इक्वेशंस के फॉर्मेशन के यू कैन सॉल्व दोस क्वेश्चंस. ठीक है, तो बेसिक पेपर ही क्योंकि 2016 में भी ऐसा ही था, 2017 में थोड़ा सा इजी हो जाता है. ठीक है ना, 2016 का. चलो now 59 question. An institute has 5 departments. 5 departments, let करो A, B, C, D, E. You have 5 departments, and each department has 50 students. That means there are many students. 50 students are there. If students are picked up randomly from all 5 departments to form a committee. What should be the minimum number of students in committee so that at least one department should have representation of minimum 5 students? What should be the minimum number of the students in the committee so that at least one department should have representation of minimum 5 students? This is very basic question of. अब जैसे इस क्वेश्चन को तुम्हें अप्रोच करना है, अगर मैं देखो क्या होता है कि ये कि तुम्हें मिनिमम कंडीशन निकालनी है कि एक कम से कम एक डिपार्टमेंट ऐसा हो जिसमें 5 स्टूडेंट हो. तुम जरूर कह सको कि हाँ देयर इज एटलीस्ट वन डिपार्टमेंट दैट कंटेन 5 स्टूडेंट्स. इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने पहले डिपार्टमेंट से 5 स्टूडेंट्स पिक कर लिए और तुमने कह दिया कि आंसर विल बी 5. नो, देयर इज पॉसिबिलिटी दैट वो 5 स्टूडेंट्स हो सकता है कि दूसरे से हो जाए और तुम्हें इसकी श्योरिटी देनी है. तो श्योरिटी देने के लिए क्या करें हम लोग कि लेट करो ए से मैंने 4 स्टूडेंट, बी से 4 स्टूडेंट, सी से 4 स्टूडेंट, डी से 4 स्टूडेंट और ई से 4 स्टूडेंट पिक. दैट मींस तुमने 20 स्टूडेंट पिक कर लिए. 4 4 4 4 4 स्टूडेंट पिक कर लिए, 20 स्टूडेंट हो गए तुम्हारे पास. अब जैसे ही तुम एक और स्टूडेंट पिक करोगे, अभी तक तुमने गारंटी नहीं दी है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द कमिटी, एटलीस्ट वन डिपार्टमेंट शुड बी रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिनिमम 5 स्टूडेंट. अभी तक मेरी गारंटी नहीं हुई है दैट देयर इज 5 स्टूडेंट्स फ्रॉम अ डिपार्टमेंट. ठीक है, अब जैसे ही तुम एक और स्टूडेंट पिक करोगे, वो या ए से पिक करो या बी से पिक करो या सी से पिक करो या डी से पिक करो या ई से पिक करो, डजंट मेक एनी डिफरेंस, देयर विल बी 5 स्टूडेंट्स फ्रॉम अ डिपार्टमेंट. That means 21 students जैसे ही तुम मिनिमम बनाओगे, there is guarantee that at least 5 students will be from one department. But in 20 students, that will not guarantee that at least one department will contain 5 students. हो सकता है कि 4 4 4 4 आ गए हो, but जैसे ही तुम 21 पिक करोगे, there is guarantee that there is at least one department which will contain 5 students. Clear है concept? Clear at 21? Yes, Pigeonhole principle.
नहीं, चिकन थ्योरम नहीं, दिस इज पिजन होल प्रिंसिपल, बट उसके नाम में कुछ नहीं, दिस इज बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक लॉजिक थिंकिंग। जस्ट लॉजिक है तुम्हारे पास कि तुम्हारे पास 5 डिपार्टमेंट है, तुम्हारे पास A B C D E, you have 5 departments and you want to pick, at least there should be at least one department should have representation of minimum 5 students, minimum 5 student का representation होना चाहिए। अगर मैं 4 स्टूडेंट दे दूं, अगर मैंने कहा कि there is minimum 20 स्टूडेंट्स है, अब 20 स्टूडेंट में ये भी तो हो सकता है ना 4 मिल गए हो, तब भी 20 स्टूडेंट में मेरे पास गारंटी नहीं है कि देयर इज एटलीस्ट वन डिपार्टमेंट विच विल कंटेन 5 स्टूडेंट्स। अब जैसे ही मैं एक और स्टूडेंट इंक्रीज करूंगा 21, वो लास्ट स्टूडेंट जो एक स्टूडेंट मैं कहीं से भी पिक करूं, आइदर आई विल पिक फ्रॉम A B C D E, देयर विल एटलीस्ट वन डिपार्टमेंट विच विल कंटेन 5 स्टूडेंट्स, सो आंसर विल बी 20। Now next question. Now next question is easiest one and high chances of error or silly mistake, high chances, क्योंकि लास्ट ईयर मुझे पता है, क्योंकि स्टूडेंट्स ने जो सिली मिस्टेक करी थी जिन पर्टिकुलर क्वेश्चंस पे, इस टाइप के क्वेश्चंस में हाई चांसेस रहते हैं। मिस्टेक कहाँ होती है? क्वेश्चन रीड ना करने पे। EQRS आर पॉजिटिव इंटीजर्स, वो रीड नहीं करेंगे कई लोग ऐसे होंगे जो रीड ना करें, उस चक्कर में भी मिस्टेक हो जाती है तुम्हारी। तो इन क्वेश्चंस को, जो भी एग्जैक्ट में क्वेश्चन आए, उनको रीड थोड़ा बेटर वे में करो, रीड उसको एक एक पॉइंट पे करो, क्योंकि अगर तुमने मिस्टेक करी यू विल गेट योर आंसर, तुम्हें आंसर तुम्हारा पक्का उस ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है, अब मुझे परफेक्ट क्यूब बनाना है। 11 टू द पावर p प्लस 7 को अगर परफेक्ट क्यूब बनाना है, दैट मींस वी विल कन्वर्ट इन इट 11 टू द पावर 9, दैट मींस वैल्यू ऑफ p विल बी 2। 7 टू द पावर q माइनस 2 को 7 टू द पावर q माइनस 2 को अगर परफेक्ट क्यूब बनाना है, दैट मींस q शुड बी, q की वैल्यू 7 की पावर क्या हो सकती है? 3 हो सकती है, 7 क्यूब हो सकती है ना। 7 टू द पावर 0 भी हो सकती है, 7 to the power 0, that means it is 1. 1 is also a perfect cube. So value of q will be 2. q की वैल्यू कितनी आई? 2 आई। अब यहाँ पे मिस्टेक क्या होती है थोड़ी थोड़ी, कि q की वैल्यू तुम लोग 5 रख सकते हो, चांसेस है कि कुछ लोग 5 रखते हैं q की वैल्यू। ठीक है, तो ये सब चीजें एक एक पॉइंट पे मिस्टेक होने के चांसेस है, उनको थोड़ा सा ध्यान देना सेट में। सिली मिस्टेक विल रिड्यूस योर चांसेस ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, अब r की वैल्यू पे अगर हम लोग अटैक करें तो r विल बी इक्वल टू 2। r की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई तुम्हारे पास। s की वैल्यू कितनी आएगी? दैट विल बी 3 ना, क्योंकि 3 की पावर 0 नहीं रख सकते, क्योंकि इट्स अ पॉजिटिव इंटीजर। 1 नहीं होगी, 2 नहीं होगी, 3 क्यूब इज अ परफेक्ट क्यूब। सो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3, दैट विल बी 9। 9 विल बी योर आंसर, सो आंसर विल बी E। ठीक है, तो हाई चांसेस हैं मिस्टेक होने के, इजी बट हाई चांसेस की मिस्टेक हो जाए किसी पॉइंट पे। ठीक है, तो ये चांसेस रहते हैं, थोड़ा सा ये सब एरर का थोड़ा तो मैं बोल रहा हूँ और सुनते ही नहीं है यार। s इज अ पॉजिटिव इंटीजर, इट्स नॉट अ integer only, it's a positive integer. 0 is not a positive integer. पॉजिटिव गिवन है ना, यहाँ पर भी तुम वो थोड़ा देखो, थोड़ा वही कह रहे ना, क्वेश्चन को सही से रीड करो हर एक पॉइंट पे, क्योंकि तुमने रॉन्ग किया, तुमने उसको 0 लिया, तुम्हारा आंसर मैच कर गया, 6 आ गया आंसर उसका, 6 उसका आंसर आ गया। मैंने बोला ना कि तुम अगर रॉन्ग करोगे स्टिल यू विल गेट योर आंसर, तुम्हें आंसर जरूर मिल जाएगा। ऐसा चांसेस ही बहुत कम होते हैं कि तुम रॉन्ग करो तुम्हारा आंसर ना मैच करे। उनके आंसर इतने परफेक्ट बनाए हुए होते हैं कि तुम्हें रॉन्ग करने पे भी तुम्हारे पास आंसर मिलने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अच्छा थोड़ा वर्क है मुझे, जैसे मैंने कहा था ना कि 1 घंटे का सोचा था, 1.5 घंटे तक हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन कल क्लास में मैं डिस्कस कर लूंगा, जब भी अब सेशन होगा उसमें डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, और फिर 2016 वाला एक बार डिस्कस कर लेंगे, फिर टॉपिक वाइज हम लोग चलेंगे कि जेट में जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जैसे मेंसुरेशन पार्ट हो गया, या तुम्हारा प्रोबेबिलिटी का एक पर्टिकुलर पार्ट हो गया। ठीक है, बायस थ्योरम, ये सब थ्योरम्स हो गई, बायस थ्योरम और
प्रोबेबिलिटी मल्टीनोमियल थ्योरम है ना, बाइनोमियल में मल्टीनोमियल थ्योरम की बात हो गई। इस टाइप के क्वेश्चन जो बनते हैं इस पे, उस टाइप के टॉपिक्स कवर। ठीक है, ओके, थैंक्स। बाकी किसी को कोई डाउट हो, दे कैन पोस्ट इन ग्रुप। बाकी जो भी सेशन होगा है ना, उसका मैं बता दूंगा कि किस डेट में सेशन है तुम्हारा कोई भी। ठीक है, पहले से वो बता दूंगा कि किस डेट में सेशन है। थैंक्स।